ایک طرف یونیورسٹی روڈ کی پائپ لائن کا مسئلہ حل نہ ہو سکا تو دوسری جانب سوئی صدرن حکام نے دوران گیس پائپ لائن مرمت سیوریج لائن توڑ دی۔ گٹر کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشان ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ پائپ لائن ڈالنے کا کام شہریوں کے لیے دردسر بن گیا۔ نارتھ آباد بلاک ایف میں سیوریج کی پائپ لائن متاثر، گٹر کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشان۔ الزام لگایا سوئی صدرن حکام نے سیوریج کی لائن توڑی جس سے گٹر کا پانی روڈ پر جمع ہوا۔ اپنی مدد آپ کے تحت روڈ بھی بنوائی تھی اور گٹر بھی بنوا رہے ہیں۔ سیوریج کی لائن متاثر ہونے سے گندا پانی صاف پانی میں مکس ہو رہا ہے، لیکن جس انداز میں ایس ایس جی کے کانٹریکٹر بالکل کسی کنٹرول کے بغیر مشینوں سے ہمارا پانی کا، سیوریج کا، بجلی کا، ٹیلی فون کا انفراسٹرکچر زمین کے اندر تباہ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی ایس ایس جی کے حکام جو ہے وہ نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ مستقل ہمارے لوگ، ہمارے کونسلر گاڑیوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کی مشینوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، لیکن وہ بالکل کسی قسم کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں۔ کونسلر بلاک ایف طارق بن نصیر کا کہنا تھا کہ بھاری مشینی سے کھدائی کے لیے منع بھی کیا تھا۔ سوئی صدرن کو کہا بھی تھا کہ کام شروع کرنے سے ایک دن پہلے آگاہ کر دیجیے گا تاکہ ہم سوئی صدرن کے عملے کو سیوریج اور میٹھے پانی کی لائنوں سے متعلق رہنمائی کر سکیں۔ یہ تو پورے نارتھ آباد کے لیے دردسر بنا ہوا ہے۔ ہم نے مختلف میٹنگوں میں ان لوگوں سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ یہ ایس ایس جی سی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بہت ساری میٹنگیں ٹاؤن میں بھی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جہاں بھی آپ کام شروع کریں ایک دن پہلے ہمیں انفارم کر دیں تاکہ ہم کھڑے ہو جائیں اور آپ کو سیوریج یا پانی کی جو لائنیں ہیں ان کے بارے میں پہلے سے انفارم کر دیں۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ ایس ایس جی سی اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو اس طرح انجام دے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن سکیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کچھ بات کریں گے ملکی معیشت کی، تو ملکی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر آ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ہونے پر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں 2% کی کمی کر دی ہے۔ شرح سود 15% سے کم ہو کر 13% پر آ گئی۔ رواں سال مانیٹری پالیسی میں اب تک شرح سود میں 9% کمی کی جا چکی ہے۔ بزنس کمیونٹی میں شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، ملکی معیشت سنبھلنے لگی۔ اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود میں 2% کمی کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں ہوا۔ اہم معاشی عدد و شمار کا جائزہ لیا جس کے بعد کمیٹی نے شرح سود میں 2% کمی کا فیصلہ کیا اور شرح سود 15% سے گھٹ کر 13% پر آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نومبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 78 ماہ کی کم سطح 4.90% رہ گئی ہے۔ مانیٹری پالیسی کے مطابق معیشت کے حالیہ عدد نمو کے امکانات بہتر ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ اکتوبر میں مسلسل تیسری بار فاضل رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے سے قرضوں کی واپسی اور کم رقم ملنے کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر $12 ارب ہو گئے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی رفتار کم ہونے پر شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش موجود تھی۔ بزنس کمیونٹی کی جانب سے شرح سود میں 4% کمی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کا یہ اثر ہونا ہماری ایکسپورٹس کو بھی بڑھائے گا اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس ٹو فائنینس کا پرابلم ہے یا کاسٹ آف بورنگ مہنگی ہے یا کاسٹ آف کریڈٹ مہنگی ہے وہ کچھ تھوڑی سی قابل کنٹرول نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ انرجی کے ٹیرفز کو بھی اگر کم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک گروتھ میں ایک بہت اچھی پراسپیرٹی کا سائن سامنے آ چکا ہے۔ ایک دیرینہ مطالبہ بزنس کمیونٹی کا تھا کہ اس میں کم از کم 5% یا ایٹ لیسٹ 4% کمی کی جائے۔ اگر یہ ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو آپ کی صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا، لوگ انڈسٹرائزیشن کی طرف جاتے اور جو سیکٹر بری طریقے سے اس میں متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، آٹو موبائل سیکٹر اور دوسری انڈسٹری، وہ اس میں کچھ بہتری آتی ہے اور تھوڑی سی کاروباری ایکٹیویٹیز اس ملک میں بڑھتی۔ بزنس مینوں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ سنگل ڈیجٹ میں کسی طرح سے لے کے آئیں اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کے اوپر وعدہ بھی کیا تھا کہ 2025 کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آ جائیں گے۔ تو آج بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کم سے کم 3% تو آج یہ ضرور کم کریں گے۔ پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں سال شرح سود میں 5ویں مرتبہ کمی کی گئی ہے۔ رواں مالی سال معاشی نمو 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہنے کے امکانات۔ پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ برآمدات میں 8.7% بہتری ہوئی ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق کم رہ گیا ہے۔ روپے کی قدر میں استحکام دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ترسیلات زر میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اور ناظرین، سوشل میڈیا پر بغیر کسی تصدیق کے پوسٹ کرنے والے شہری ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ پولیس کی سوشل میڈیا فورس کی جانب سے تمام پلیٹ فارمز پر نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ جبکہ یہ ٹیم کراچی پولیس آفس میں کس طرح کام کر رہی ہے دکھا رہے ہیں معراج اختر اپنی اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق کے پوسٹ ڈالنے والوں کی شامت۔ کراچی پولیس کی سوشل میڈیا فورس میدان میں آ گئی۔ کے پی او میں قائم سوشل میڈیا فورس نے ہر پلیٹ فارم پر نگرانی شروع کر دی۔
सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम पोस्ट की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज अमजद हुसैन के मुताबिक सच्ची पोस्ट पर मुतल्लिका थाने को कार्रवाई की फौरी हिदायत की जाती है और जो लोग बिना तस्दीक के पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई चीज़ फेक होती है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, अगर सही होती है तो उसके जो रिलेटेड थाना होता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनके पास हम सेंड करते हैं उसके हल के लिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बिला तस्दीक पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस के अलावा साइबर क्राइम भी कार्रवाई करेगा। FIA का इदारा होता है, हम पहले उनके एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है ना लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, उनको सेंड करते हैं लेटर, उनको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, हमारे पास ये एविडेंस है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और वो एक्शन लेते हैं। कराची पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि बदअमनी फैलाने और इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने से गुरेज करें और कोई पोस्ट वायरल करते वक्त तस्दीक जरूर करें। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। कराची से रवाना होने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। ड्रेक रोड स्टेशन पर पहले एक बोगी में फनी खराबी हुई, फिर ट्रेन पटरी से उतर गई। मुसाफिर घंटों स्टेशन पर बैठे रहे। ट्रेन को 6 घंटों के बाद 2 हिस्सों में रवाना किया गया। नम्रा रियासत रिपोर्ट करेंगी। कराची से रवाना होने वाली रहमान बाबा ट्रेन डिग रोड स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। पहले एक बोगी, फिर ट्रेन का बड़ा हिस्सा पटरी से उतर गया। हादसे के बाद कराची से मुल्क भर जाने और आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो गया और मुसाफिर घंटों इंतजार करते रहे। ट्रैक की बहाली का काम 6 घंटे में मुकम्मल हुआ और ट्रेन को 6 घंटे बाद 2 हिस्सों में डिग रोड से रवाना किया गया। तो इतना 4 घंटे अब ट्रेन आई है, ये चीज़ जब होनी थी तो 4 घंटे इन्होंने सोचा है कि इसका करना क्या है। ज़ाहिर है इंतज़ामिया की नाअहली है, हम तो यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। यहाँ से जब ये वापस लेके आ रहे थे ना, तो ये लूप लाइन कहलाती है। इस लाइन पे ये पैसेंजर ट्रेन नहीं आ सकती, लेकिन ये अब नाअहली कह लो ड्राइवर की या इस पूरी मैनेजमेंट की, इन्होंने इस लूप लाइन पे चढ़ाया। और ये जो 4 नंबर वाली बोगी है जिसमें हमारी पूरी ये फैमिली है, 18 से 20 लोग हैं, और भी लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। इन्होंने तंग करके रखा हुआ है आवाम को। ऐसी चीज़ अगर यहाँ से कैंट शुक्र है यहाँ पे हो गया, अगर ये होता थोड़ा सा आगे जाके तो फिर तो ये 2 दिन ख़राब कर देते हमारे। अभी 6 घंटे लेट है गाड़ी। रहमान बाबा भी 6 घंटे लेट गई है, अभी कराकरम भी 6 घंटे लेट गई है, 4 घंटे लेट गई है। रहमान बाबा एक्सप्रेस की पटरी से उतरने के बायस अलामा इकबाल एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, कराकरम और तेज गम समेत कराची से रवाना होने वाली दीगर ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई और मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी, PECHS UC1 के मकीन भी सरापा एहतजाज। एहतजाज में MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली फराज सुहेल ने भी शिरकत की है। शुएब मुख्तार की ये रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी, बिजली और गैस के बहरान पर शहरी आग बगोला हो गए। PECHS ब्लॉक 2 के मकीनों का एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए UC ऑफिस का भी घेराव कर लिया। गैस दो, पानी दो, गैस दो, पानी दो, गैस दो, पानी दो। एहतजाज से खिताब में MQM पाकिस्तान की रुकन सिंध असम्बली फराज सुहेल ने शिकवा किया कि 21वीं सदी में भी हम पानी, बिजली और गैस का रोना रोते हैं। एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं, हम इनके ऑफिस में भी जाकर करेंगे। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक के बाद अब जी बात आ गई है पानी पर और गैस पर। गैस भी बंद हो रही है। पानी का यह हाल है कि पिछले 5 बार अगर पानी का टाइम होता है तो बिजली चली जाती है, बिजली मौजूद नहीं होती है। तो ये इन मसाइल के हल के लिए ख़वातीन और यहाँ पे मर्द हजरात सब मौजूद हैं, हम सब सोसाइटी के रिहायशी हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत को पानी की मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक 7 रोज़ का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमें संजीदा ना लिया गया तो जल्द सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। पानी से मुतालिक मेरा आप लोगों से ये कहना है कि बराए मेहरबानी हम लोग का पानी ऑन करवाया जाए, क्योंकि PCHS ब्लॉक 2 में कभी पानी की किल्लत नहीं हुई है। ये 2 महीने से हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। 7 दिन के अंदर हमारी लोड शेडिंग खत्म नहीं करी तो दवा मस्त कलंदर जैसे पिछले साल किया था उससे डबल करके दिखाएंगे। और ये देख लें आप लोग, ये हजारों लोग यहाँ जमा हो चुके हैं मोहल्ले वाले। और यहाँ अलमिया ये है कि सोसाइटी को खंडरात का मंजर पेश कर रही है ये सोसाइटी। ना इधर पानी है, ना इधर बिजली है, ना इधर गैस है। एहतजाजी मुजाहिरे में खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर मुतालबात की मंजूरी के लिए खूब नारे भी लगाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।
दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹2.78 से लेकर ₹3.32 तक कमी कर दी गई। शहरियों ने डीजल सस्ते और पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के फैसले को अजीब मंतक करार देते हुए तशवीश का इजहार किया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। मट्टी का तेल, लाइट और हाई स्पीड डीजल तो सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल की कीमतें वहीं की वहीं बरकरार। शहरियों ने नई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मायूसी का इजहार कर दिया। शहरियों का कहना है कि आलम यह है कि जो यौमिया कमाते हैं, इसका बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। हुकूमत डीजल गाड़ियां चलाने वालों को रिलीफ दे रही है। जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इनका क्या कसूर है? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। हुकूमत की तो जब मर्जी आती है सस्ता कर देते हैं, जब मर्जी आती है महंगा कर देते हैं। आवाम की तो कोई सोचता ही नहीं किसी बारे में। बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ डीजल वालों को रिलीफ मिल रहा है तो पेट्रोल वालों को भी रिलीफ मिलना चाहिए। सारा दिन हम लोग फेरी करेंगे, जितने का हम माल नहीं खरीदेंगे उससे ज़्यादा हमारा पेट्रोल का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है। 200 रुपये 150 रुपये मुश्किल से हमको माल के ऊपर बचेंगे। तो होना तो चाहिए। हुकूमत से गुजारिश है कि भाई इनको पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 292 रुपए 10 पैसे पर मुस्तहकम रखी है, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपए 38 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे कमी से 161 रुपए 66 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 78 पैसे कमी से 148 रुपए 95 पैसे का हो गया। कैमरामैन ताबिश के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सट्टेबाज और ज़हीरा अंदोज चीनी महंगी करने के लिए मुतहरिक हो गए। होलसेल में फ़ी किलो कीमत 5 रुपए बढ़ गई है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। सट्टेबाज और ज़खीरा अंदोज सरगर्म, चीनी की कीमत को फिर पर लग गए। होलसेल में चीनी 5 रुपए इजाफे से 127 रुपए किलो हो गई। दुकानदार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, फिर भी चीनी का रेट बढ़ गया। सट्टेबाज चीनी महंगी होने के जिम्मेदार हैं, हुकूमत लगाम दे। कि पेट्रोल भी अभी बिल्कुल ये समझो कि वो बढ़ा ही नहीं है, और डीजल बढ़ाने का बोला था वो भी आज वैसे कम किया है, तो बढ़ने की कोई वजूहत नहीं है। ये सब सट्टेबाजों का कमाल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। शहरी भी कीमत में इजाफे पर नाला हैं, जिन्होंने हुकूमत से महंगाई को काबू करने का मुतालबा कर दिया। अवाम तो मजबूर है ना, अभी क्या कर सकती है। हम अवाम जो हिसाब से देंगे तो वो उसी हिसाब से होलसेल वाला देगा। होलसेल से आगे परचून के 5-5, 10-10 रुपए आगे अवाम के आगे ऊपर सारा बोझ जाएगा। हुकूमती अदाद शुमार में बताया गया है कि कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं, जहां चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए तक पहुंच गई है। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। उधर खुश्क मेवा जात की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। शहरी काजू, अखरोट, बादाम और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ तो हैं, मगर साथ ही साथ महंगाई का शिकवा करते भी नजर आते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। की शिद्दत में इजाफा हुआ तो खुश्क मेवा जात की मांग भी बढ़ गई, कीमतें भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। अखरोट 800, पिस्ता 2800 से 3200, बादाम 1200 से 1600 और काजू 4000 से 4400 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। मगर चिलगोजा शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है, जो 10 से 16,000 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अखरोट का रेट है 500 से लेकर 800 तक है। बादाम का रेट है 3000 से लेकर 4000 तक। ये काजू का रेट है 3800 से लेकर 4400 तक। मुख्तलिफ किस्म होते हैं ना, 3-3, 4-4 वैरायटी हर गिराक को हम लोग दिखाते हैं, उसको जो पसंद आ जाते हैं वही दे देते। पिछले साल की निस्बत तो रेटें ऊपर है, क्योंकि टैक्सें बढ़ा दिया, डिप्टियाँ बढ़ा दिया, इसकी वजह से माल थोड़ा ऊपर है। फिर भी हम लोगों ने जो है ना आसमान से ज़मीन पर लाया है। शहरियों ने हुकूमत से खुश्क मेवा जात की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। बोले खुश्क मेवा जात खाना अब हर किसी के बस की बात नहीं रही। महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो इनको भी हक है महंगा करने का। हर चीज़ महंगी हो रही है ना भाई, तो ड्राई फ्रूट ठीक है पहले के मुकाबले में महंगा लगता है, लेकिन जैसे महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। आम आदमी के लिए तो खैर रोटी लेना भी मुश्किल है। हर साल मौसम सर्द होते ही खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, लेकिन कीमतों में हालिया इजाफे के बाइस आम आदमी के लिए मेवाजात की खरीदारी एक ख्वाब बनकर रह गई है। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 1867 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,16,169 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में देखिए।
कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,16,000 की नई सतह पर पहुंच। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। ब्रोकर्स का कहना था स्टेट बैंक अगर 2% से ज्यादा शरह सूद में कमी कर दे तो मार्केट में नई तेजी देखी जा सकती है। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 5% तक भी हो जाए, सिंगल डिजिट में आ जाए इंटरेस्ट रेट, तो इससे जो है स्टॉक एक्सचेंज में भी एक नया ट्रेंड आएगा, बूम आएगा। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक जो हमारी जो इंडिकेटर है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। जी, लोगों को तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 2.5 से 3%, अगर इस दौरान 2% भी हुई तो मार्केट इंशाल्लाह कल आपको और अप जाती हुई नजर आएगी। ओवरऑल जो है मार्केट सेंटिमेंट बहुत मुस्बत है। 1,16,000 का टच करना हिस्टोरिकल हाई, और उसकी वजह ये कि इमिनेंट कट है। अब ये जो कट कितना होगा, बड़ा कट होगा तो जाहिर है मार्केट के अंदर मुस्बत परफॉर्मेंस और ज़्यादा देखी जाएगी। अगर छोटा कट होगा तो जाहिर है इन्वेस्टर के अंदर जो है वो प्रेशर डेवलप होगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मार्केट में रेट हर मंथ जो स्टेट बैंक की पॉलिसी और दिन ब दिन कम होती जाएगी, मगर फिलहाल ये जो आज की जो पॉलिसी है ये 1.5 से 2% के चांसेस है। आज कारोबार के दौरान 477 कंपनियों के 1 अरब 47 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 67 अरब 62 करोड़ रुपए रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 246 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 194 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, कराची।